Welcome to all students and parents. In this video, let's start with exercise 1.2, Maths 2, 12th Commerce. Okay, in exercise 1.2, in our last video, we have studied basics for this exercise. Okay, now we are going to study the basic problems. Exercise 1.2, question number 1, they have given what is the present worth of sum of rupees 10,920 due 6 months hence at 8% per annum simple interest. Okay, so listen it carefully. आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, आप चेक कर सकते हो प्रॉब्लम. Okay, the first problem, in that problem they have given sum of rupees 10,920 due. So sum due is given as 10,920 and 8% per annum is the rate of interest, and they have not given, I think, what is the present worth. That is the question. We have to find present worth, and they have given sum due 6 months. 6 months is the period. Okay, so n, we have got sum due, then we have got 6 months, that is n, and 8% per annum, that is r. Okay, so here in this problem we have got given that sum due is equal to rupees 10,920. This is sum due. Then period is given as 6 months. 6 months is nothing but 6 by 12, that is equal to 1 by 2 years. This is the period को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने दिया है 8% पर एनम. एनम मतलब ईयर, पर ईयर 8%. सो वी हैव गॉट सम ड्यू एंड आर, एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड प्रेजेंट वर्थ. हमें प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है. तो प्रेजेंट वर्थ का सम ड्यू से स्ट्रेट अवे रिलेशन नहीं है. ओके, सो प्रेजेंट वर्थ का रिलेशन किसके साथ है? ट्रू डिस्काउंट के साथ है. बराबर है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ट्रू डिस्काउंट. वी डोंट नो प्रेजेंट वर्थ. ओके, सो समझ में आ रहा है? सम ड्यू है. सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. बराबर है. तो प्रेजेंट वर्थ तो अननोन है, ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले. उसमें भी प्रेजेंट वर्थ आने वाला है. सो प्रेजेंट वर्थ जो आपको चाहिए उसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं. लेट रुपीज एक्स बी द प्रेजेंट वर्थ. तो प्रेजेंट वर्थ हमने अज्यूम कर लिया रुपीज एक्स. हो गया. नाउ वी कैन फाइंड आउट ट्रू डिस्काउंट. सो देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट और सिंपली यू कैन फाइंड राइट एज टीडी. ट्रू डिस्काउंट टीडी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज. तो वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट अप करोगे तो प्रेजेंट वर्थ एक्स इंटू एन कितना है? 1/2. आर कितना है? 8 अपॉन 100. So 2 4s are 8. Okay, so you'll get 4x upon 100. You can make calculation and you'll get x upon 25. ये हो गया आपका ट्रू डिस्काउंट. हो गया. अब सम ड्यू दिया है ना, तो सम ड्यू के लिए फॉर्मूला यूज करोगे. सम ड्यू इज इक्वल टू सम ड्यू, क्या फॉर्मूला है? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. Now just substitute the values. Sum due 10,920 is equal to present worth x plus true discount x upon 25. Now just we have to solve the problem. बराबर. अब just solve करना है. यहाँ पे डिनोमिनेटर किसने है, मतलब क्या आएगा? 1, या फिर you can multiply by 25. सबको आप 25 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. So here you will get 10,920 into 25 equal to 25x plus, अगर यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करते हो 25 will get cancel. What will get? x. Just make a calculation. So you will get 25 0 0, 25 2s are 50, 5, 25 9s are 225. What will be the value? You can make a calculation. Okay, or simply you can divide it. 25 9s are 225, 225 plus 5, 230. Then you'll get 230.
23, 25, 0, 3, 2, 25 ones are 25 plus 2, 27. Here you will get 26x. So therefore x is equal to 273,000 divided by 26. That will give you the final answer. अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको. अगर 26 का टेबल नहीं आ रहा है तो यू कैन डिवाइड बाय 13 ऑल्सो. 13 से आप डिवाइड करो सिंपल. 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 13 2 26 13 2 26 1. ओके 13 1 13 and then 000. So 21,000 divided by 2 and that comes to 10,500. Finished. This is your present worth. Just a calculation. So basic problem में क्या था? Sum due was given as rupees 10,920 and for how many months? 6 months. So we have to convert 6 months. 6 month को convert करना पड़ेगा year में. तो month को year में convert करने के लिए 12 से divide करेंगे. 6 divided by 12. 6 1 6, 6 2 12, 1 by 2 आ गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8% पर एनम. पर एनम मतलब पर ईयर, एक साल के लिए 8%. अब आपको प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है जो कि मालूम नहीं है. तो आपने क्या किया, प्रेजेंट वर्थ अज्यूम किया x, लेट रुपीज x बी द प्रेजेंट वर्थ. हो गया. अब सम ड्यू दिया है तो सम ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो सम ड्यू का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. तो ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला प्रेजेंट वर्थ इनटू n इनटू r अपॉन 100. पुट अप द वैल्यूज, यू विल गेट x अपॉन 25. सम ड्यू, यूज द फॉर्मूला, पुट अप द वैल्यूज 10,920 x by 25 multiplying by 25, you will get the final answer. Finally you have to write therefore the present worth equal to rupees 10,500. Are you getting it? Very simple problem. Let's proceed to question number 2 from this exercise. Okay, in this question they have mentioned what is the sum due of rupees 8,000. What is sum due of rupees 8,000 due 4 months, hence at 12.5% simple interest. What is sum due पूछा है. What is sum due of rupees 8,000. 8,000 का sum due पूछा है, मतलब sum due find out करना है. तो फिर 8,000 क्या है, बराबर है वो है प्रेजेंट वर्थ. क्या बोला, व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ 8,000. 8,000 का सम ड्यू पूछा, मतलब 8,000 क्या हो गया, प्रेजेंट वर्थ. तो अब इस प्रॉब्लम में प्रेजेंट वर्थ दिया है 8,000, 4 मंथ बोला है, तो 4 मंथ क्या हो गया, n पीरियड हो गया. देन 12.5% सिंपल इंटरेस्ट, तो 12.5% क्या हो गया आपका r. ओके, सो जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज गिवन दैट. क्या दिया है, प्रेजेंट वर्थ, बराबर प्रेजेंट वर्थ, एंड दैट प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू रुपीज 8,000. This is present worth. Then they have given 4 month, n is equal to 4 months. So convert months into year. अब ये month है ना, इसको year में convert करना है, तो क्या करेंगे 4 by 12 मतलब 1 by 3 years हो गया. Then R rate of interest कितना दिया है, 12.5% per annum. Okay, so now this problem onward, I'll not make final calculation. You just try your final calculation to save some time. Okay, we have got present worth and R, and we have to find what, sum due. तो sum due find out करने के लिए पहले क्या find out करना पड़ता है, yes, true discount. Okay, so therefore true discount is equal to, what is the formula, present worth into n into r upon 100. So put down the values. Present worth 8,000 into n 1 by 3 into r 12.5 upon 100. So therefore true discount, what will be the calculation, 0 0 0 0 will get cancelled. So you will get 80 into 3
डिवाइड तो नहीं कर पाएगा इसको. ओके, व्हाट यू हैव टू राइट. ओके, ये 8,000, keep it as it is, into 1 by 3 into here 12.5 and 100. Here you can make some calculation. 12.5 को अगर 125 कर देते हो तो ये 100 बन जाएगा 1000. कैसे समझा ना? पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो अगर आपको ये पॉइंट रिमूव करना है, डेसिमल पॉइंट, तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 125 ये 1000. नाउ यू कैन मेक अ कैलकुलेशन. 125 8 जा 1000. कैसे? सिंपल है ना, प्रीटी. 25 5 जा 25 4 जा, बराबर है ना. यहाँ भी क्या आएगा? 25 5 जा 125, 25 4 जा आएगा, तो ये 40 और ये 5 5 1 जा 5 8 जा. Are you getting it? So straight away you can write his 8,000 into 1/3 upon here you will get 8. Now 8 अगर इसको डिवाइड करेगा तो 8,000. 1,000 divided by 3. So therefore true discount is equal to 1,000 by 3. 1,000 by 3 मतलब कितना आएगा? 333.33. This will be the true discount. ओके, तो जितना हो सके आप इजीली कैलकुलेशन कर दो उसको. कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आपको? ये क्या किया? 12.5 को हमने 125 कर दिया, तो 100 का हो गया 1000. सो 125 8 जा 1000, और 8 अगर 8000 को डिवाइड करेगा तो 1000 आएगा, और 1000 डिवाइडेड बाय 3 है. 1000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 333.33. ये हो गया आपका ट्रू डिस्काउंट. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड सम ड्यू. Sum due is equal to present worth plus true discount. So present worth is 8,000 plus true discount 333.33. Just add them, you get 8,333.33. This will be the sum due. Any doubts? Just a calculation है, थोड़ा calculation में mistake ना हो, इतना check करना थोड़ा. You will get the final answer. Are you getting it? Then question number 3, they have given true discount on sum due 8 month, hence at 12% per annum is rupees 560. True discount is 560. पूरा सेंटेंस सुनना. True discount on sum due 8 month, तो 8 month क्या हो गया? N हो गया आपका 8 month. At 12% per annum, तो ये 12% per annum क्या हो गया? R, rate of interest, is rupees 560. तो स्टार्ट कहां से किया था? ट्रू डिस्काउंट से ना, मतलब ये 560 क्या दिया है? ट्रू डिस्काउंट. तो ट्रू डिस्काउंट इज 560. तो अपने पास क्या क्या है? ट्रू डिस्काउंट 560. मंथ कितना दिया वहां पे? 8 मंथ, तो n इक्वल टू 8 मंथ. कन्वर्ट करेंगे ईयर में, and the rate of interest दिया है 12%, R equal to 12%. We have to find sum due and present worth. आपको sum due और present worth find out करना है. बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बराबर है. अब यहाँ पे भी अपने पास ट्रू डिस्काउंट तो ऑलरेडी है, प्रेजेंट वर्थ अपने पास नहीं है, पर फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मूला में प्रेजेंट वर्थ आता है, एन आता है, आर आता है, बराबर. जिसमें से अब इस प्रॉब्लम में ट्रू डिस्काउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, एन मालूम है, आर मालूम है, सिर्फ अननोन क्या है? प्रेजेंट वर्थ. इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे ही प्रेजेंट वर्थ मिला यू कैन फाइंड आउट सम ड्यू. इज दैट क्लियर? ठीक है. Question number 3, ordinary sum. In this sum they have given true discount. True discount is given as rupees 560. Then n is given as 8 month. 8 months is equal to 8 by 12. 8 by 12 years. 4 2s are 4 3s are 2 by 3 years. Then rate of interest, this is given as 12% per annum. 12% per annum. Okay, we have got true discount and R. Simple formula. We have
ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू r अपॉन 100. जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है वो पुट अप कर दो. ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू क्या है 560. सो 560 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ अननोन, तो कीप इट एज इट इज. प्रेजेंट वर्थ एज इट इज रहेगा n, हाउ मच 2/3. सो n का वैल्यू 2/3 इंटू r, हाउ मच 12 इंटू 12 अपॉन 100. सो सिंपल. 3 1s are 3 4s are and 4 2s are 8. So what you will get 560 into 100 is equal to 8 into present worth. Is that clear? समझे ना क्या क्या? 3 4s are 12, 4 2s are 8. तो 8 into present worth आ जाएगा और ये जो 100 डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई. Now simple, 8 will divide. So you will get present worth is equal to 56000 upon 8. So 8 7s are 56, 000. So present worth is rupees 7000. ये हो गया अपना present worth. हो गया. So अब क्या चाहिए आपको? Sum due ना. So therefore sum due is equal to present worth plus true discount. Present worth is 7000. True discount is 560. So finally you will get 7560. This will be the sum due. Any difficult? So simple. At the end, write down both the values. So therefore, present worth equal to rupees 7000 and sum due is equal to rupees 7560. Finished. Okay, are you getting it? Any doubts? Pretty ordinary and simple sums are given. True discount is given, n is given, r is given. We have to find present worth and then sum due. Clear? So next move to question number 4. In that question, the condition is pretty interesting. थोड़ा interesting condition दिया उन्होंने. True discount is 3/8 times of 3/8 of sum due. True discount और sum due में relation दिया. True discount is 3/8 of sum due. Then at 12% per annum, 12% rate of interest दिया है per annum. And question is find the period of the bill. आपसे पूछा है period of the bill. बिल का पीरियड पूछा आपसे. तो सिंपल सी बात है, पीरियड ऑफ द बिल मतलब ही क्या होता है एन. अब रिलेशन ट्रू डिस्काउंट और सम ड्यू में दिया है, तो आप देख रहे हो ट्रू डिस्काउंट और सम ड्यू में जो रिलेशन है इसमें कहीं पे एन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ट्रू डिस्काउंट और प्रेजेंट वर्थ है इस रिलेशन में एन नजर आ रहा है. दिस इज द पीरियड ऑफ बिल. मतलब एक्चुअल रिलेशन कौन सा चाहिए था? ट्रू डिस्काउंट और प्रेजेंट वर्थ में रिलेशन चाहिए था, तो इजीली एन मिल सकता था. बात मेरी समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग इट? दे हैव गिवन रिलेशन बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड सम ड्यू. ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 ऑफ सम ड्यू, मतलब 3/8 टाइम्स सम ड्यू. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड पीरियड ऑफ द बिल. सो लेट्स ट्राई. Rate of interest is given. Just a relation is given. On the basis of that relation, we have to find period of the bill. Period of the bill मतलब n. Okay. So given that R equal to 12% per annum, इतना ही दिया है. और फिर कंडीशन दिया है. Also कंडीशन क्या दिया है? True discount is 3/8 times sum due, मतलब 3/8 into sum due. This is the condition. True discount 3/8 of sum due, मतलब is मतलब is equal to 3/8 of, मतलब 3/8 into sum due. This is given. But जैसे कि मैंने बोला कि sum due और true discount में जो रिलेशन है उसमें n आता ही नहीं. तो n कब आता है? ट्रू डिस्काउंट और प्रेजेंट वर्थ में आता है ना.
ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो अब हम क्या करेंगे, इस सम ड्यू में भी प्रेजेंट वर्थ लाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल है, सम ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स सम ड्यू। सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ, हो गया ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ड्यू। सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ, हो गया ना अभी काम। अब इस ट्रू डिस्काउंट को प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट करेंगे और ये ट्रू डिस्काउंट है उसे भी प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट करेंगे। आपको सिर्फ एन से मतलब है, क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड ऑफ बिल। आपको ट्रू डिस्काउंट नहीं चाहिए, आपको प्रेजेंट वर्थ नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, अगर आपको एन फाइंड आउट करना है तो एक ही अननोन होना चाहिए। तो हम सभी को या तो सब जगह पे ट्रू डिस्काउंट लेके आएंगे या फिर सब जगह पे प्रेजेंट वर्थ लाएंगे। तो क्या इजी है, प्रेजेंट वर्थ, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। मतलब ट्रू डिस्काउंट की जगह पे प्रेजेंट वर्थ लाना इजी है। आर यू गेटिंग इट? तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स ट्रू डिस्काउंट ना। पहले क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, बाद में यूज करेंगे। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3/8। अगर यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं आप तो फिर आपको मिल जाएगा, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते हो या 8/3, फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू ट्रू डिस्काउंट, यहाँ पे 8 विल गेट कैंसल, 3 इंटू ट्रू डिस्काउंट, 3 इंटू ट्रू डिस्काउंट प्लस 3 इंटू प्रेजेंट वर्थ। याद रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। क्या क्या समझे आपको, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया 8 इंटू ट्रू डिस्काउंट, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया 8 विल गेट कैंसल, तो कौन है 3 विल मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स, तो 3 इंटू ट्रू डिस्काउंट, ओके 3 TD, 3 इंटू प्रेजेंट वर्थ, 3 इंटू प्रेजेंट वर्थ। अब ये प्लस 3D यहाँ पे जाके माइनस, सो देयरफॉर 8 माइनस 3 ना, सो स्ट्रेट अवे यू कैन राइट 5 TD। लॉजिक समझा क्या, ये प्लस 3 TD है ना, यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, तो 8 TD माइनस 3 TD, 8 माइनस 3 5 TD, 5 ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू 3 टाइम्स प्रेजेंट वर्थ। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यूज करो, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है ना आपके पास, यूज करो। तो देयरफॉर 5 इंटू ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 3 इंटू प्रेजेंट वर्थ को एज इट इज रखो, उसे चेंज मत करना है। अब देखो ये प्रेजेंट वर्थ यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड, बराबर 5 1 जा, यहाँ पे 5 2 जा 10, मतलब 20 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन, एन तो मालूम नहीं है पर आर आपको मालूम है, आर कितना है 12, तो यहाँ पे 12 अपॉन 5 ने इसे डिवाइड किया, कितना आ गया है 20 इक्वल टू 3 इंटू प्रेजेंट वर्थ। अब ये प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड, 20 डिवाइड, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड, जस्ट अ कैलकुलेशन। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 इंटू प्रेजेंट वर्थ बराबर इंटू 20 जो डिवाइड है वो क्या हो गया मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई है प्रेजेंट वर्थ, और 12 जो मल्टीप्लाई है वहां पे जाके डिवाइड, प्रेजेंट वर्थ इंटू 12, प्रेजेंट वर्थ विल गेट कैंसल हो जाएगा। ये 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा 60 अपॉन 12, हाउ मच 5, सो n इक्वल टू 5। बट ये n किस में होता है, ईयर्स में होता है ना, तो n इक्वल टू 5 ईयर्स। so therefore period of bill is equal to 5 years. Finished. Something interesting. तो समझा प्रॉब्लम में क्या कंडीशन दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 12% पर एनम, क्या बोला था, ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 ऑफ सम ड्यू, तो TD इज इक्वल टू 3/8 ऑफ सम ड्यू, बराबर। अब सम ड्यू पूछा तो n है ना, पीरियड ऑफ द बिल तो मालूम है ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मूला में n आता है, बराबर। तो सम ड्यू का भी एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ।
अब टू डिस्काउंट और प्रेजेंट वर्थ में रिलेशन रखना है आपको, बराबर है। तो क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। तो क्या किया, सबको 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 TD, यहाँ पे 8 गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, बाकी सब तो जानते हो आप। तो फिर ये जो TD है वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक ही टर्म रखना है। तो यहाँ प्रेजेंट वर्थ है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट वर्थ आना है, क्यों, तब जाके प्रेजेंट वर्थ क्या होगा, कैंसिल होगा। तो TD का फॉर्मूला अप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं है। जितना भी यहाँ पे टर्म्स है वहां पे शिफ्ट किया, सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ पे n रहेगा, प्रेजेंट वर्थ क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली n इक्वल टू 5 years, so period of bill equal to 5 years. Are you getting it? Very simple problem. So here we have covered first 4 problems from exercise 1.2. So just go through all these 4 problems. Very easy and simple problems are there. Okay, so go through them, study them properly. Okay, if you have any doubts or queries, like in comment box. Okay, so like this video and subscribe. Thank you very much.